Hello everyone, how are you? Welcome to all of you in this chemistry lecture. In previous lecture we learnt what is vapor pressure, what is lowering of vapor pressure, and before that we also learned how the temperature and pressure affect the solubility of a gas in liquid. In this lecture we are going to learn about relative lowering of vapor pressure and a concept that is known as Raoult's law. Okay, so let us start this lecture. So relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure. It is defined as the ratio. It is defined as the ratio. It is defined as the ratio of lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent, to the vapor pressure of pure solvent. It is defined as the ratio of lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent. It means relative lowering of vapor pressure, this is equal to lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure means what? Delta P divided by to the vapor pressure of pure solvent. Pure solvent का vapor pressure क्या है? P naught. So vapor pressure of pure solvent or pure liquid is P naught, denoted by P naught, and delta P is the lowering of vapor pressure. So delta P is what? Lowering of vapor pressure, and P naught is the vapor pressure of pure solvent. Vapor pressure of pure solvent. So this is the definition. What is the relative lowering of vapor pressure? Here is the concept and the definition also. It is defined as the ratio of what? Ratio of lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent. So lowering of vapor pressure denoted by delta P, vapor pressure of pure solvent denoted by P naught. So relative lowering of vapor pressure is a ratio. So मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, ठीक है. नेक्स्ट क्या बेटा? दिस relative lowering of vapor pressure, is a colligative property, It is a colligative property. It means it depends only on the number of moles of solute. Relative lowering of vapor pressure is a colligative property. It means it depends only on the number of moles of solute. Then relative lowering of vapor pressure denoted by delta P divided by P naught is equal to what? Is equal to mole fraction. Only depends on the number of moles of solute, and we know that moles of solute in solution, if moles of solute we have to calculate in solution, then they are known as mole fraction. 2 for solute, ये 2 जो लिखा है मैंने 2, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ आपके लिए कि जब भी मैं यहाँ पे बॉक्स में जब भी मैं 1 यूज़ करूँगा 1,
तो 1 यूज़ करूँगा सॉल्वेंट के लिए और 2 यूज़ करूँगा सोल्यूट के लिए। 1 फॉर सॉल्वेंट एंड 2 फॉर सोल्यूट। तो x क्या है? मोल फ्रैक्शन, बट हियर इट इज रिटन 2, इट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। 1 लिखूंगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। गेटिंग द पॉइंट? सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट relative layering of vapor pressure is a colligative property. It means it depends only on the number of moles of solute, and we know that moles of solute in solution, they are represented as mole fraction. So delta P by P naught, this is the relative lowering of vapor pressure, is equal to x2. We have to prove this. What? We have to prove relative lowering of vapor pressure is a colligative property. तो प्रूफ करने से पहले हमने क्या सीखा? What is relative lowering of vapor pressure? उससे पहले भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या बताया था? What is vapor pressure? Then what is lowering of vapor pressure? Today now we know what is relative lowering of vapor pressure, क्या डेफिनेशन है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो इट मस्ट बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट. What is the meaning of the mole fraction of solute? That is the number of moles of solute present in a solution. Okay, so now we have to prove this, and to prove this we have to use Raoult's law. So again 1 for solvent and 2 for solute. तो आप ये याद रखना, यहाँ पे मैंने लिख दिया. नेक्स्ट राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ, Raoult's law. Raoult's law, according to this law, the partial pressure of any component present in a solution is the product of the mole fraction of that component in the solution and vapor pressure of that component in pure form. Or simply you can say that according to Raoult's law, the partial pressure of any component in a solution containing volatile solute is directly proportional to its mole fraction. Directly proportional to its mole fraction. So I am going to write this definition, then you can understand easily. According to this law, the partial pressure of any component present in the solution containing volatile components is directly proportional to its mole fraction. Directly proportional to its mole fraction. According to this law, the partial pressure of any component present in the solution containing what? Volatile components present in the solution containing volatile components is directly proportional to its mole fraction. Means if you have, for example, you have a solution, case 1, case first. एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ये डेफिनेशन भी अपने को याद हो जाएगा. Partial pressure of any component present in the solution is directly proportional to the mole fraction of that component. Mole fraction या
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, दोनों का मीनिंग एक ही है। सो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और इजीली समझ में आएगा। केस 1, let a solution is containing two components, two volatile components A1 and A2. So you have a solution that is containing two volatile components A1 and A2. You have a solution that is containing two volatile components A1 and A2. So A1 और A2 आपके पास दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, इनको हमने पहले अलग अलग रखा है, दोनों वोलेटाइल हैं। ध्यान देना, A1 और A2 को हमने अलग बीकर में रखा है, अभी मिक्स नहीं किया है, सॉल्यूशन नहीं बना है। तो जो A1 का नंबर ऑफ मोल्स है वो N1 है और A2 के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, N2। फिर क्या है, इसका वेपर प्रेशर है, दोनों वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब इजीली लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। सो यहाँ पे क्या, इसका वेपर प्रेशर जो है वो P1 नॉट है। वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड, दिस इज प्योर लिक्विड, दिस इज ऑल्सो प्योर लिक्विड, क्योंकि दोनों को हमने अलग अलग रखा है। तो जब ये अलग अलग रखा है तो इनके जो वेपर प्रेशर होंगे वो प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर है, तो इनको हम P1 नॉट से, किसी भी प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को हम P नॉट से डिनोट करते हैं। अब ये किसका है, A1 का, तो P1 नॉट, और यहाँ पे A2 का रहेगा तो क्या लिखेंगे, P2 नॉट। यहाँ तक क्लियर है सभी को, पक्का? अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, तो एक क्या बन गया, सॉल्यूशन ऑफ A1 एंड A2। नाउ दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ A1 एंड A2। पहले हमने दोनों को अलग अलग रखा था। अब सॉल्यूशन में तो मोल्स क्या बन जाते हैं, अगर मैं इन दोनों कंपोनेंट को मिक्स कर दूंगा तो सॉल्यूशन में जो इनके मोल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। सो मोल, लेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A1 इज x1 एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ A2 इज व्हाट, x2। and after mixing two volatile components we get a solution, so their moles becomes mole fraction। और अब उनका जो वेपर प्रेशर होगा, अब वो वेपर प्रेशर नहीं, उनको क्या बोलते हैं हम, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि जब आपके पास एक सॉल्यूशन बन जाएगा तो उस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होगा, और वो जो टोटल प्रेशर होगा बेटा, वो कंपोनेंट A के प्रेशर प्लस कंपोनेंट B के प्रेशर का सम होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ B, डिनोटेड बाय P1 एंड P2। यहां तक क्लियर हो गया तो मैं फिर आगे बढ़ूं, क्लियर हो गया? फिर से, वी हैव अ सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन इज कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स A1 एंड A2 एंड बोथ आर वोलेटाइल। ठीक है, बोथ आर वोलेटाइल। लेट द नंबर ऑफ, दोनों को आपने अलग अलग रखा है, लेट द नंबर ऑफ moles of A1 is N1, moles of A2 is N2. When both are separated in two different containers or vessels, then the vapor pressure of this volatile component is P1 naught and vapor pressure of this volatile component is P2 naught. Now we are going to mix these two components, these two volatile components. तब भी ये क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे, वेपर से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो बट सॉल्यूशन बनाने के बाद जो इनके मोल्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि वो सॉल्यूशन में हो गए, सो डिनोटेड बाय x1 एंड x2। और जो उनके वेपर प्रेशर होंगे, अब वो सॉल्यूशन में है तो उनके वेपर प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर्स। पार्शियल प्रेशर P1, A1 का पार्शियल प्रेशर P1 और A2 का पार्शियल प्रेशर P2। आई एम होपिंग दैट यू गाइज आर clear to this concept. Next, just look at the board. बोर्ड पे देखो बेटा, अब क्या करने वाले हम लोग, सो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, what is Raoult's law? The partial pressure of any component, let it is A1, so partial pressure of A1 is what, P1, so P1 is directly proportional to its mole fraction,
एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन containing volatile, solution containing volatile components, solution containing volatile, तो दोनों volatile है, yes, you have a solution, both components are volatile, so they have partial pressure and this partial pressure is directly proportional to its mole fraction, directly proportional to its mole fraction. What is mole fraction? x1, x1, and P1 is equal to what? P1 is equal to proportionality constant, but that proportionality constant is equal to P1 naught, P1 naught. भाई ये प्रोपोर्शनल है तो इक्वल टू आएगा, और इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट आता है वो किसके बराबर होता है? इस वेपर प्रेशर के बराबर, उसी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के बराबर. वेपर प्रेशर क्या होता है? जब वो कंपोनेंट या लिक्विड कौन से फॉर्म में होगा? प्योर फॉर्म में, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर होता है, उसको P1 नॉट क्या बोलते हैं? उसको प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को क्या बोलते हैं? किससे डिनोट करते हैं? P1 नॉट से. और जब वो सॉल्यूशन में होता है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर P1. सो यहाँ पे, और ऐसे ही P2 क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, और P2 इज इक्वल टू व्हाट? P2 नॉट x2, P2 नॉट x2. लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 2. since the total pressure of the solution, total pressure of the solution, or you can write like this, pressure of solution, vapor pressure of solution, vapor pressure of solution is equal to the partial pressure of A1 plus partial pressure of A2. भाई ये जो solution आपने बनाया है इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? जो दोनों कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट हैं और दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों का वेपर प्रेशर है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? पार्शियल प्रेशर. तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कंपोनेंट ए के पार्शियल प्रेशर प्लस कंपोनेंट बी के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा. दोनों को ऐड करने पे जो आएगा. समझ में आया? तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिलेगा बेटा अपने को? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS, शॉर्टकट में लिख दिया PS, दैट इज इक्वल टू P1. P1 कितने के बराबर है? P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4. सो you have information. So when you have, this is case first, when you have a solution and that solution is containing volatile, two volatile components, then the total pressure of the solution is equal to what? P1 naught x1 plus P2 naught x2. ये कैसे आया? राउल्स लॉ के हेल्प से हमने निकाला है. क्योंकि राउल्स लॉ क्या बोल रहे हैं? राउल्स लॉ ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास एक लिक्विड है, उसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं वो वोलेटाइल हैं, तो उन वोलेटाइल कंपोनेंट्स का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उन कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो हमने उसके बेस पे ये निकाल लिया कि कोई भी लिक्विड जो वोलेटाइल है और सॉल्यूशन में है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सो इज इक्वल टू करने पे ये क्या आएगा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट. वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट का मतलब जब वो कंपोनेंट क्या होगा? प्योर फॉर्म में होगा, तो उसके वेपर प्रेशर को हम क्या लिखते हैं? P1 नॉट. जब वो सॉल्यूशन में होता है तो उसके वेपर को क्या लिखते हैं? पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर. तो ये एक कंडीशन हो गया बेटा. अब आप इसको लिख लो, तो फिर मैं दूसरे कंडीशन पे आ जाऊं, केस 2 पे. आप इसको एक बार लिख लो, फिर एक बार ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है? तो राउल्स लॉ आपको क्लियर हो चुका है. अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज the partial pressure of any component in the solution is directly proportional to what? Mole fraction of that component, mole fraction of that component. Now case 2. बट जो हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, जो इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, उसमें से एक क्या होता है? एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट. तो जो सोल्यूट होता है उसको हमने क्या मान के रखा है, या हम क्या कंसिडर करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू कंसिडर द सेकेंड कंपोनेंट, दैट इज A2 इज अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. इसके बेस पे ही हम प्रूफ कर पाएंगे क्या? कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी.
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कभी जब आपका सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट जो वो वोलेटाइल लिक्विड है और जो आपका सोल्यूट है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो केस 1 में दोनों वोलेटाइल थे तो ये इक्वेशन मिलेगा। केस 2 में आपको दूसरा मिलेगा, लेट A2 इज नॉन वोलेटाइल लिक्विड। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा नॉर्मल टेम्परेचर पे, जैसे A1 हो रहा है। सो अगर ये नॉन वोलेटाइल है बेटा तो इसका जो P1 नॉट होगा, सॉरी P2 नॉट कितना हो जाएगा, 0। अभी आपने यहाँ पे लिखा है A2 इज नॉन वोलेटाइल। जब ये नॉन वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर कितना आएगा, 0 ही तो आएगा ना, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट कितना हो गया है, 0 इंटू x2। सो दिस इज इक्वल टू P1 नॉट x1। आई एम होपिंग दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, आई एम गोइंग टू रब इट। ये रब कर देता हूं मैं, फिर आप देखो नोट्स में तो आपने सब लिखा ही है। सो नाउ PS डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू x1, सिंस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, सो x1 is equal to 1 minus x2. Put this value here. So PS divided by P1 naught is equal to 1 minus x2. ये देखो बेटा, अब इसको हम इधर लेके आते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं, तो क्या मिलेगा, x2 is equal to what, 1 minus PS by P1 naught। 1, ये x2 इधर लेके आए हैं और इसको इधर लेके गए हैं, तो ये माइनस वाला जो है वो प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस है वो माइनस, ऐसा हो जाएगा। सो x2 इज इक्वल टू व्हाट, P1 नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P1 नॉट। और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय P नॉट, या 1 भी लिख सकते हो आप, एंड दिस इज इक्वल टू x2। P1, or simply this can be written as P naught minus P divided by P naught is equal to what, x2, where P naught क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जनरल इक्वेशन बना रहा हूं, आप 1 भी लिखोगे तो 1 किसके लिए यूज किया है, सॉल्वेंट के लिए, तो आप ये भी यूज कर सकते हो और ये भी। यहाँ पे S नहीं लिखा है तो भी आपको PS लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। S का मतलब या P का मतलब क्या है, सॉल्यूशन के लिए है, तो हम उसको जनरल इक्वेशन बना रहे हैं, तो हम P लिखें या PS, आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सोल्यूट का तो कोई वेपर प्रेशर है नहीं। किसका वेपर प्रेशर है, P1 नॉट किसका है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बट एक्चुअल में ये भी किसका है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ही है, बट दैट सॉल्वेंट इज कंटेनिंग व्हाट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है वो तो प्योर सॉल्वेंट का है ही, और वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन होता है वो भी सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर है, अगर वो सॉल्वेंट में क्या प्रेजेंट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। आई एम होपिंग दैट यू गाइज आर क्लियर विथ ऑल दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुझे बार बार एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं। जब आप फीडबैक दोगे, कमेंट करोगे, तभी पता चलेगा। सो ये जनरल इक्वेशन, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, दोनों सेम है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। 1 किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए। सो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आपको पता ही होगा P1 नॉट माइनस P और PS, simply you can say that this is P naught minus P, this is equal to what, delta P। याद है आपने बुक में लिखा है, P1 नॉट हो या P नॉट हो, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपने S लिखा है, जैसे यहाँ से हम आपको डिराइव करते आ रहे थे इसलिए लिख दिया था। आप किस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये समझा कि नहीं समझा। ये कितने के बराबर है, डेल्टा P, तो डेल्टा P यहाँ पे पुट कर दूँ तो कितना आएगा बेटा, डेल्टा P
डिवाइडेड बाई पी नॉट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, x2। यही तो प्रूफ करना था ना आपको। और ये डेल्टा पी बाई पी नॉट क्या है, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी because it depends only on the number of moles of solute। x2 is what, that is the number of moles of solute ही है, क्योंकि वो सॉल्यूशन में है। तो जब आपका कोई कंपोनेंट अकेले रहता है तो उसको मोल्स बोलते हैं, सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा तो उसके मोल्स क्या बन जाते हैं, मोल फ्रैक्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमने प्रूफ कर दिया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? पक्का? आप देख लो इसको एक बार। हमने दो केसेस लिखे हैं, एक केस 1 था जिसमें दोनों लिक्विड वोलाटाइल थे, तो हमें ये वाला इक्वेशन मिला था। अगर बट हमें कौन सा केस पढ़ना है जिसमें एक क्या होगा कंपोनेंट, नॉन वोलाटाइल होगा, दूसरा कौन सा होगा, वोलाटाइल होगा, उसके बेस पे आपको ये निकालना था। तो नॉन वोलाटाइल रखा तो P2 नॉट क्या हो गया, 0। फिर इक्वेशन जो 4 है उसमें हमने P2 नॉट की वैल्यू को पुट कर दिया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो इतना ही बचेगा। फिर हमने इसको रीअरेंज किया। अब x1 के टर्म में तो हमें निकालना नहीं है, हमें कौन सा टर्म में निकालना है, x2, मतलब सोल्यूट के टर्म्स में। तो x1 और x2 कितना होता है, 1। सो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। सो इसको रीअरेंज किया, फिर रीअरेंज किया और ये ला दिया। सो P1 नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू x2, और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाई P नॉट इज इक्वल टू x2। तो 1 किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। सो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सो इस राउल्ट्स लॉ का यूज करके हमने प्रूफ कर दिया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, आप लिख लो इसको फटाफट। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन relative lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure and molar mass of solute. Relationship between lowering of vapor pressure and molar mass of solute. So since we know that P1 naught minus P divided by P1 naught, 1 मैं बार बार यूज कर रहा हूं किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, और जो P लिखा वो किसके लिए है, सोल्यूट के लिए नहीं, सॉल्यूशन। सो दिस इज इक्वल टू x2। सो P1 naught minus P divided by P1 naught is equal to what, N2 divided by N1 plus N2. You know that? You know this na? x2 is equal to what, N2 by what, N1 plus N2। मैंने आपको 10 बार बोल चुका हूं मैं कि x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन। 2 किसके लिए, सोल्यूट के लिए। सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज व्हाट, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मीन्स सॉल्यूशन में जो मोल्स होते हैं किसके, सोल्यूट के, वही क्या है, मोल फ्रैक्शन आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So for dilute solutions, the N1 is much greater than N2. For dilute solutions, बहुत dilute solution है। dilute solution का मतलब इसमें सोल्यूट बहुत कम होगा, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर सोल्यूट बहुत कम है इसका मतलब उसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सो N1 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट्स आर मच ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर ये बहुत ज़्यादा है, कौन बहुत ज़्यादा है, N1, तो हम क्या ले सकते हैं, N1 प्लस N2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू N1। मतलब N1 N2 के रिस्पेक्ट में इतना ज़्यादा है कि N2 की वैल्यू को N1 में ऐड करने से उसकी वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक you are having 1 crore rupees and you are taking 100 rupees from that 1 crore. So it means that it's not going to affect, you can say that almost I have 1 crore rupees. So
I am saying that N1 is much greater than N2. It means on adding the value of N2 in N1, there is no effect, there is no significant change. So we can take N1 plus N2 is equal to N1. N1 plus N2 is equal to N1. So, but this is applicable for what? Dilute solution. So now we are going to put this value in this equation. So we have P naught, P1 naught minus P divided by P1 naught, that is equal to N2 by N1, N2 by N1. Since N2 is equal to W2 by M2, W2 क्या है भाई? मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट. M फॉर मोलर मास, ठीक है, M कैपिटल M, बट वो 2 के साथ है तो उसको मोलर मास बोलते हैं. मोलैरिटी मत देख लेना, कंफ्यूजन होगा फिर आपको. मोलर मास. और ये N1 कितना होगा बेटा? दिस इज W1 बाई वॉट? M1. अब ये दोनों वैल्यू आप इधर पुट कर दो. सो P1 नॉट माइनस P डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू वॉट? इज इक्वल टू W2 बाय M2 इंटू M1 बाई वॉट? W1. ये समझ में आया कैसे हुआ? अच्छा मैं फिर से लिख देता हूँ इसको. ऐसे लिखा मैंने, N2 के प्लेस पे ये लिख दो तो क्या आ जाएगा? W2 बाय M2. और फिर क्या, ये N1 के प्लेस पे ये वाला लिख लेते हैं तो कितना आ जाएगा? W1 बाई वॉट? M1. सो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे. ये 1 किसके साथ? 4 के साथ. 1 किसके साथ? 4 के साथ. 2 किसके साथ? 3 के साथ. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? P1 नॉट माइनस P डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू W2 बाय M2 इंटू वॉट? M1 बाई वॉट? W1. W1 where W2 is what? Mass of solute. W1 is the mass of solvent. M1 is the molar mass of solvent, and M2 is the molar mass of solute. So here you can say this, here you can look, here you can see this P1 naught minus P divided by P1 naught. This is what? This is relative lowering of vapor pressure. Relationship between relative lowering of vapor pressure and molar mass of solute. Molar mass of solute. This is molar mass of solute ना? This is molar mass of solute. So molar mass of solute मिल जाएगा आपको. तो देखो, अगर आपने क्या किया है, आपने W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट लिया है, ठीक है. एक आपके पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जिसका वेट है W1 ग्राम और इसका वेपर प्रेशर है P1 नॉट. अब आपने क्या किया, इसमें W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट आपने ऐड कर दिया. सोल्यूट ऐड करोगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया? कम हो गया. कितने के बराबर? P के बराबर हो गया. P के बराबर. तो वो बोल रहा है कि जो आपने W2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है उसका क्या निकाल के दिखा दो मुझे? मोलर मास कैलकुलेट करके आप बता दो. सो व्हेन वी नो W2, W1 मोलर मास आपको दिया रहेगा, सॉल्वेंट का नाम देगा तो मोलर मास निकल जाएगा सॉल्वेंट का. P1 नॉट दिया रहेगा, P भी दिया रहेगा, देन यू कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट. अगर आपके पास कोई अननोन सोल्यूट है, उसका आपने 10 ग्राम किसी नॉन सॉल्वेंट में ऐड कर दिया है तो उसके वेपर प्रेशर में क्या होगा? डिक्रीज होगा. और उसके बेस पे हम उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का क्या निकाल सकते हैं? मोलर मास. और मोलर मास निकल गया तो हम बता देंगे कि हमने कौन सा सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपके सॉल्वेंट में ऐड किया था. ठीक है? ओके, गेटिंग द पॉइंट. सो यू हैव टू लर्न दिस इक्वेशन ऑल्सो. Relative lowering of vapor pressure, that is P1 naught minus P divided by P1 naught is equal to W2 by M2 into M1 by W1. I'm hoping that this is clear to all of you. You have to revise all this concept. Then you will understand when you will solve questions on based on these concepts. Then you will understand and you will get some knowledge about this concept. What is Raoult's law?
आज मैंने क्या बोला, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या है, केस 1 उसमें था, केस 2 था, फिर मैंने इसको डिराइव करा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यू कैन से दैट वी हैव टू प्रूफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, जो हमने प्रूफ कर दिया। फिर बाद में हमने एक और रिलेशन निकाला कि हाउ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मीन्स व्हेन यू नो द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देन यू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट ऑल्सो। तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट इसीलिए हुआ था कि हम अननोन सोल्यूट का भी मोलर मास निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। राउल्ट्स लॉ क्या है, आपको क्लियर ही हो गया। राउल्ट्स लॉ क्या है कि व्हेन द पार्शियल प्रेशर, व्हेन यू हैव अ सॉल्यूशन कंटेनिंग व्हाट, वोलेटाइल्स, लिक्विड्स और कंपोनेंट्स, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, जो कंपोनेंट प्रेजेंट है किसमें, सॉल्यूशन में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। उसके बेस पे हमने केस 1 केस 2 ऐसा करके, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट भी है, तो आप प्लीज़ एक बार इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, बाद हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर्स। अभी मैंने आपको ले लिखा था कि आपके पास एक सॉल्यूशन है and this solution is containing A1 and A2 components, and these two components both are volatile, both are volatile, both are volatile. So दोनों के क्या होंगे, इनका भी प्रेशर होगा जिसे हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, इसका भी प्रेशर होगा। भाई दोनों वोलेटाइल है तो उनके प्रेशर होंगे, तो सॉल्यूशन में है तो उनके प्रेशर, वेपर प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। और ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है, ये पूरा जो सॉल्यूशन बना हुआ है, ये जो सॉल्यूशन है इसका भी वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको किससे डिनोट किया आपने, P से, या आप P टोटल लिख सकते हो और आप P सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप P टोटल लिखो या P सॉल्यूशन लिखो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और P टोटल लिखो या P सॉल्यूशन। तो जो बेटा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ या टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स विच आर volatile components which are present in the solution। फिर से अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अभी लिखा था क्या, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। अब इसमें कितने कंपोनेंट हैं, 2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ A1 एंड क्या, A2। तो A1 का कितना है, P1, A2 का कितना है, P2, तो दोनों को ऐड कर दिया, यही तो लिखा था ना अभी मैंने। तो ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, आपकी बुक में दिया हुआ है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर के लिए ये है, टोटल प्रेशर के लिए ये है, समझ में आया। दूसरा ये है कि आपने जो सॉल्यूशन लिया है, ये सॉल्यूशन, ये लिक्विड फॉर्म में आपका सॉल्वेंट है और इसमें 2 कंपोनेंट हैं A1 एंड A2, तो ये वेपर फॉर्म में भी कन्वर्ट होंगे। वेपर फॉर्म में आपको पढ़ाया था मैंने, वेपर प्रेशर कैसे जनरेट होता है, जब आपका ये लिक्विड, ये जो लिक्विड है, ये जो सॉल्यूशन है, ये अपने क्या, अपने जो मॉलिक्यूल इसके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल, इस सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गए हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो वेपर फॉर्म में जो कन्वर्ट हुए वो मॉलिक्यूल और ये लिक्विड, इन दोनों के बीच में जब इक्विलिब्रियम हो जाता है, मतलब जितना लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस टाइम पे इस लिक्विड के वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by the vapors of the liquid when the liquid is in equilibrium with what, vapors of its vapors। ये मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे अब ये देखो जरा,
अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का दूसरा फॉर्म भी है, क्या कि ये प्रेशर, ये जो पार्शियल प्रेशर है, इनको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज द क्या लिखेंगे बेटा? इज द मल्टीप्लिकेशन और द प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन in vapor phase of that component into what? Total pressure of solution. So यहाँ पे मैं टोटल भी लिख दूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर से ये जो पार्शियल, राउल्ट्स लॉ अलग है। राउल्ट्स लॉ में क्या था? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट is directly proportional to the mole fraction of that component present in the solution. ये दूसरा है, ये डाल्टन का है, क्या कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन वेपर फेज, ठीक है, एंड टोटल प्रेशर। मैं फिर से तो बता दूं आपको, क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन वेपर फेज एंड टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो मैं इसको सोच रहा हूं कि एक बार लिख भी दूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या है बेटा, और जो आपका राउल्ट्स लॉ है उसमें क्या है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और यहां पे राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ का मैंने आपको बताया है कि आपके पास दो कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट सॉल्यूशन में है, वोलेटाइल है, तो इनका जो पार्शियल प्रेशर होगा P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? X1 एंड P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। X1 क्या है? दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ one component in the solution। और X2 क्या है? X2 ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ second component in the solution। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, Y1 भी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ that component in vapor phase into total pressure of the solution। और P2 क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इन वेपर फेज into क्या? टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सो बेटा यहाँ पे Y देखो, P1 भी क्लियर है, P2 भी क्लियर है, ये यहाँ पे भी पार्शियल प्रेशर है, ये भी पार्शियल प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर है, चलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो Y1 है वो क्या है? वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट, और यू कैन से फर्स्ट कंपोनेंट इन द वेपर फेज। ये वेपर फेज वाला है, ये वेपर फेज है जो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो गए। जो वेपर में कन्वर्ट हुए A1 के मॉलिक्यूल जो वेपर में कन्वर्ट हुए हैं उनका मोल फ्रैक्शन, और इस A2 के जो मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हुए हैं उनका मोल फ्रैक्शन।
तो ये y1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट इन क्या, वेपर फेज। जब वो कंपोनेंट वेपर फेज में है तो उसके मोल फ्रैक्शन को हम y1 से डिनोट करते हैं। और दूसरा क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इन क्या, वेपर फेज। थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर इसको आपने यहां पे लिखा था ऐसे, P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट, या यहाँ पे P2 लिखा था, फिर x2 क्या, P2 नॉट। तो यहाँ पे दो डिफरेंस है, दोनों को समझ लो आप। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, जो x1 है वो मोल फ्रैक्शन है किसमें, किसी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में, लिक्विड फॉर्म में, और x2 है दूसरे कंपोनेंट का लिक्विड फॉर्म में मोल फ्रैक्शन है। और P1 क्या है, उसका वेपर प्रेशर है जब वो प्योर फॉर्म में है, और P2 नॉट क्या है, दूसरे वाले कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे y1 क्या है, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। y2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इन क्या, वेपर फेज। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दे देना और एक बार बुक से पढ़ लेना, नहीं आएगा तो मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा, बट एक बार आप ध्यान से इसको यहाँ पे देख लोगे, एंड देन व्हेन यू विल गो फॉर रिवीजन और व्हेन यू विल कंसल्ट विथ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये इसलिए बताया, ये मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में भी बताया था 11th में, बट आज फिर से मैंने इसको रिवाइज कर दिया क्योंकि वो कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको। राउट्स में जब आपकी बुक पढ़ोगे आप, उसमें राउट्स भी दिया है, डाल्टस भी दिया है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, बातें दोनों क्लियर रहें कि y1 और y2 क्या है। अगर ये क्लियर हो गया और उधर x1 और x2, तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है फिर आपको। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट।